જય અવધૂત. નવનાથ ધામ બિલીમોરાથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પર બિરાજમાન પરબ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાનિદાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. જેમના અથાગ પ્રયત્નો થકી ધૂતિવાન નાથ સંપ્રદાયનો પ્રચાર અને પ્રસાર વિશ્વભરમાં થઈ રહ્યો છે એવા ફોરવર્ડ થિંકર આપણા સૌના વહાલા પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી વંદન. સાતત્યતાનો ઉત્તમ નમૂનો જ્ઞાનસભર વિજ્ઞાનસભર અને અધ્યાત્મસભર આપણું શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ પખવાડિકનો નવો અંક પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યો છે. તો પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણી સમક્ષ નવા અંકનું અનાવરણ કરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે મહાશિવરાત્રિનું પર્વ પાછલા અઠવાડિયામાં આપણે મનાવ્યું. આ વખતે ફોટોન મેચિકમાં એક અનોખી પહેલ ઉપાડવામાં આવી હતી. આપણા ફોરવર્ડ થિંકર પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાએ ટેકનોલોજીને અને શિવભક્તિને એક સરસ રીતે જોડી હતી. એમણે જીવ અને શિવનું કનેક્શન અને જીવ અને શિવની ભક્તિ માટે એક નાની અમસ્તી શાયરીના સ્વરૂપમાં એક રીલ્સ બનાવી હતી, જેને ફોટોન મેજિકના બધા સભ્યોએ પોતાના એક્ટિંગથી અને પાછળ પૂજ્યશ્રીનો અવાજ હોય એ રીતના કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક કેમ્પેન ચલાવ્યું હતું. 237થી પણ વધારે લોકોએ આ કેમ્પેનમાં વિડીયો બનાવ્યા હતા અને લગભગ 1.25 લાખથી પણ વધારે લોકોએ આ વિડીયોને જોયો હતો. તો આ ખૂબ સફળ કેમ્પેન રહ્યું હતું. આ કેમ્પેનમાં જોડાયેલા ફોટોન મેજિકના સભ્યોએ વિવિધ વેશમાં ખૂબ જ સરસ એક્ટિંગ કરીને ખૂબ સરસ વિડીયો બનાવ્યા હતા. તો એમાં પહેલાં જે 3 વિડીયોઝ છે જેને સૌથી વધારે વ્યૂઝ મળ્યા છે, તો એમના આપણા નામ જાણીએ. આપ સૌ તાળીઓના ગડગડાટથી એમનું અભિવાદન કરશો. સૌ પ્રથમ કુંદન પાટીલ ઉધનાના છે. એમના વિડીયોને 17,400 વ્યૂઝ મળ્યા છે અને 717થી પણ વધારે લાઇક્સ મળી છે. તો કુંદનભાઈ પાટીલ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. ત્યાર પછી બીજા નંબરે છે મિહિરભાઈ જર્મનવાલા. એમના વિડીયોને 11,200 વ્યૂઝ મળ્યા છે. 250થી પણ વધારે લાઇક્સ એમને મળી છે. મિહિરભાઈ માટે ખૂબ ખૂબ તાળીઓ થઈ જાય. અને ત્રીજા નંબરે છે રાજેશભાઈ કુલાબકર અંકલેશ્વરથી. એમના વિડીયોને 10,000થી 700 વધારે વ્યૂઝ મળ્યા છે અને 300થી બી વધારે લાઇક્સ મળી છે. તો ફોટોન મેજિકમાં આ 3 સદસ્યો મને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને તમે આવું કાર્ય હંમેશા કરતા રહો એવી જ પૂજ્ય ગુરુદેવને પ્રાર્થના. હવે આજનો ભંડારો પાછલી ગયેલી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં વિજયી થયેલ હર્ષિલભાઈ જયેશભાઈ નાયક દેવસર 1 બેઠક પરથી ઊભા રહ્યા હતા, એમના તરફથી છે. અને એમનું માનવું છે કે પૂજ્યશ્રીની કૃપા અને દાદાની કૃપાથી જ એમને ચૂંટણીમાં વિજય મળ્યો છે. તો હર્ષિલભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને એ જ પ્રાર્થના કે ગુરુદેવની કૃપા સદા એમના પર વરસતી રહે. ભંડારામાં વિવિધ વાનગીઓ જેવી કે પુલાવ, કઢી, પંચકોટિયું શાક, પૂરી, કંદપૂરી, પાપડ પાપડી, કચુંબર, મગની દાળનો શીરો, એવી રીતના ભરપૂર એક થાળી કહેવાય એ રીતનો ભંડારો કરેલ છે. તો હર્ષિલભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હવે આજના પ્રસંગે પરમ પૂજ્ય છોટે દાદાશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની વિચારગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरु
मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय। आनंदी लाल की जय। छोटे दादा की जय। हम सबके हृदय में परम ज्योति स्वरूप में उपस्थित ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। एवं जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। परमात्मा ने यह सृष्टि का सृजन जीव के उत्थान के लिए किया है। परमात्मा ने यह सृष्टि का सृजन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के कल्याण मार्ग के लिए किया है। परमात्मा ने यह सृष्टि का संचालन समस्त विश्व वैकुंठ बने इसी हेतु से किया है। और इसीलिए परमात्मा ने अपनी ही कलाकृति, अपनी ही प्रतिकृति ऐसे मानव का निर्माण किया। और मानव का निर्माण करते हुए मनुष्य को अपना अंश बनाते हुए यह सृष्टि के उत्थान के लिए, यह सृष्टि के कल्याण के लिए और यह सृष्टि वैकुंठ बन सके, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता और ज़्यादा से ज़्यादा सामर्थ्य मनुष्य को प्रदान किया। और मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह अपनी आंतरिक शक्ति के सामर्थ्य से, अपने शारीरिक श्रम से और अपने मानसिक बल से यह पूरी सृष्टि का कल्याण करे। लेकिन इतना सामर्थ्य होने के पश्चात भी मनुष्य अपने स्वभाव से और अपनी विकृतियों से अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की जगह वह सृष्टि को नरक बना रहा है। जनहितार्थ की भावना से विमुख होते हुए अपनी स्वार्थ वृत्ति से वह प्रत्येक जीवों का अकल्याण कर रहा है। और यही सब देखते हुए, यही सब समझते हुए हमारे भारतवर्ष के मुनियों ने मनुष्य की कोटि को 3 रूप में विभाजित कर दिया। मनुष्य की एक कोटि है देव कोटि, दूसरी कोटि है मानव कोटि और तीसरी कोटि है असुर कोटि, जिसके भीतर में सत्व गुण का प्रभाव है
जिसके अंदर सद्ज्ञान स्फुरित हो चुका है, जिसकी बुद्धि पवित्र हो चुकी है, जिसने अपनी ऊर्जाओं को संकल्प में परिवर्तित कर दिया है, जो प्रति मिनट प्रति क्षण अपने सभी कार्य परोपकार के रूप में कर रहा है, परमार्थ के रूप में कर रहा है, ऐसी विचारधारा वाले, ऐसी कार्य क्षमता वाले, ऐसी गुणवत्ता वाले व्यक्ति को देव कहा गया। और आज हम देखते हैं कि ऐसी देवकोटि के व्यक्तित्व इस भूमि के ऊपर अवतरण हो चुके, अवतरण करके अपने कार्य को समाप्त करके वो वापस परमात्मा के धाम पहुंच सके। और उसमें हम मान सकते हैं कि विश्व के सभी वैज्ञानिक, विश्व के महान संत पुरुष, सन्यासी और जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे सभी महानुभाव यह कोटि में आते हैं। दूसरी कोटि होती है मानव कोटि, जिसे कहा गया कि वो मध्यम कोटि है। और मध्यम कोटि होने के कारण उनके अंदर रजोगुणी व्यक्तित्व का प्रभाव है। जिसके भीतर में रजोगुणी व्यक्तित्व का प्रभाव हो, जिसकी बुद्धि परिपक्व हुई हो, जो अपने जीवन के सभी कार्य पहले अपने उत्थान के लिए और बाद में सामाजिक उत्थान के लिए लगा देता हो, जिसके द्वारा प्रति क्षण अपने परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ कार्य करने की क्षमता हो, ऐसे स्वभाव वाले, ऐसे गुणवत्ता वाले, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को मानव कहा गया है। और इसलिए हम देखते हैं कि हम सब मानव कोटि में है, जहाँ सबसे पहले हम हमारा कल्याण करते हैं, हमारे पश्चात हमारे परिवार का कल्याण करते हैं, और परिवार के पश्चात हम समाज का कल्याण करते हैं। यानी मानव की भूमिका एक मध्यम भूमिका है, जहां परमार्थ तो होता है, लेकिन उस परमार्थ में स्वार्थ पहले होता है। यानी पहले वो सक्षम बने, अपना कल्याण करे, अपने परिवार का कल्याण करे, उसके पश्चात वो सामाजिक कल्याण के लिए आगे बढ़ता है। देवकोटि का जो व्यक्तित्व होता है वो केवल और केवल समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ता है। देवकोटि के व्यक्तित्व के लिए समस्त विश्व ही उसका परिवार है। यानी अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए वो कभी कुछ नहीं करता। और इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध ने विश्व कल्याण की कामना की, स्वामी विवेकानंद ने विश्व कल्याण की कामना की, सिद्ध योगी गोरक्षनाथ ने विश्व कल्याण की कामना की। तो ऐसे जो भी महापुरुष हुए हैं, उसने विश्व को ही परिवार माना, राष्ट्र को ही कुटुंब माना, और अपने सभी कार्य समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए किए। जहां अपने लिए कुछ संग्रहित नहीं किया, जहां अपने लिए कुछ कभी सोचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ऊर्जा को परमार्थ कार्य के अंदर परिवर्तित किया। और इसीलिए ऐसे जो संत महात्मा होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो अपने परिवार से ज़्यादातर विमुख होते हैं या अपने परिवार से अलिप्त होते हैं। लेकिन जहाँ मानव कोटि के व्यक्तित्व की बात की जाए,
वहाँ मानव पहले खुद का सोचे, बाद में अपने स्वजनों का सोचे और बाद में समाज का सोचे। यानी मानव की क्षमता समाज तक पहुंचने की है, क्योंकि परिवार और समाज से उसकी अपनी भावनाएं अंगत रूप से जुड़ी हुई है। इसीलिए अपनी शक्तियों का उपयोग वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज तक ही कर सकता है। राष्ट्र और विश्व के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना शायद उसकी क्षमता के बाहर है, उसकी समझ के बाहर है। और इसलिए यहाँ स्वार्थ से परमार्थ की भावना है। पहले स्वार्थ और उसके बाद परमार्थ, जिसे मनुष्य कोटि या मध्यम कोटि कहा गया। और तीसरी कोटि होती है राक्षस कोटि, असुर कोटि, जिसके अंदर तमोगुणी व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, तमोगुण का प्रभाव होता है। जो व्यक्ति सदा अपने सुख की सोचता है, जो व्यक्ति सदा अपने अंदर के विकारों के सुख की बात सोचता है, जिसके सुख के कारण समष्टि को नुकसान हो, ऐसे ही सुख की कल्पना वो करता है। न तो उसमें परमार्थ होता है और न उसमें ज़्यादा स्वार्थ होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर केवल और केवल अहम का भाव होता है। यानी जहाँ स्वार्थ है वहाँ परमार्थ भी हो सकता है, लेकिन असुर केवल अहम, मैं, मेरा व्यक्तित्व, मेरा सुख, मेरी कामना, मेरा मन, मेरा गर्व, मेरा अहंकार, यानी वो अहम के लिए सोचता है। और ऐसे जितने भी व्यक्ति हो, उनका जीवन व्यसनों में, दुर्व्यवहार की प्रवृत्तियों में या दूसरों को कलेश देने में ही पूरा हो जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि पूर्व के समय में जो राक्षस थे वो कैसे थे कि जो तप करते थे, वरदान जो मांगते थे वो अपने अहम के लिए मांगते थे कि मैं त्रिभुवन का सम्राट बन जाऊं, मुझे कोई मार न सके। और यह वरदान प्राप्ति करने के बाद भी किसी का भला नहीं हो सकता था, लेकिन अपनी ऐषणा के लिए वो त्रिभुवन के जितने भी जीव है उनका सर्वनाश करते थे। और यही वरदान का दुरुपयोग वो देवताओं के ऊपर भी करते थे। और इसलिए कहा गया कि जहाँ राक्षस होते हैं वहाँ का वातावरण नरक समान बन जाता है। आज हम देखते हैं कि इस दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनकी प्रवृत्तियाँ राक्षसी है, जिनकी प्रवृत्तियाँ मानव जीवन के हनन की है, जिनकी प्रवृत्तियाँ जीव मात्र के हनन की है, और जिनकी सत्ता दुराचार के लिए फैली है। उनके द्वारा जो भी निर्माण होता है, जो शस्त्र निर्माण होता है, वो विश्व कल्याण के लिए नहीं, विश्व के विनाश के लिए हो जाते हैं। और इसीलिए इसी विश्व में एक उच्च कोटि देव, मध्यम कोटि मानव और एक नीच कोटि दानव भी होते हैं। और ऐसी जहाँ तीन कोटियाँ हों वहाँ हमें देव कोटि में जाना है या हमें असुर कोटि में जाना है, ये केवल और केवल मानव को सोचना है। यानी हम सब जानते हैं कि कर्म जन्म से कोई दानव नहीं होता, कोई देव नहीं होता। जन्म तो सब मानव की भूमिका में लेते हैं, मध्यम भूमिका में लेते हैं, लेकिन मध्यम से उसका उत्थान हो जाए तो वो देव,
मानव से उत्थान हो जाए तो देव, और मानव से जहां अधोगति हो जाए वो अधोगति दानव हो जाती है। यानी हम मानवों को सोचना है कि हमें देवताओं को निर्माण करना है या राक्षसों को निर्माण करना है। और इसीलिए नर करनी करे तो नारायण बने, नर ही नारायण होता है। ये क्यों बोला जाता है? कि मानव की भूमिका मध्य में है। जैसे उसके अंदर गुणों का प्रभाव होगा, जैसे उसके अंदर उसका स्वभाव होगा, जैसे उसके जीवन में उसके संस्कार होंगे, जैसा उसका मन होगा, वैसे ही विश्व का निर्माण वो अपने आजू बाजू में कर लेगा। और इसीलिए एक राक्षस कोटि को निर्देश करने के लिए मैंने आज का मैसेज लिखा है कि इसी मानव में राक्षस रहता है और इसी मानव में देव रहता है। हमारे भीतर के आलस, प्रमाद और निंद्रा, ये 3 राक्षस है, या समझे कि एक ही राक्षस है। ये ऐसा राक्षस है जो हमारे शारीरिक श्रम को क्षीण कर देता है, जो हमारे मानसिक बल को समाप्त कर देता है, और हमारे अंदर से उठते हुए शक्ति और सामर्थ्य का जो विनाश करता है, वो दैत्य का नाम है आलस, निंद्रा, आलस, प्रमादस्य। कि निंद्रा, आलस और प्रमाद रूपी राक्षस हमें क्षीण कर रहा है और हमारे मानव जीवन का वो ग्रास कर लेगा। इसीलिए उस शत्रु को, उस राक्षस को मारा जाए। लेकिन कैसे मारेंगे? तो ज्ञान रूपी शस्त्र से उसे मारा जाए। और ज्ञान रूपी शस्त्र से जब उसे मारा जाता है तब हमारा मानव जीवन सुरक्षित रह सकता है। नहीं तो मानव जीवन का ग्रास हो जाएगा असुरी जीवन में। इसलिए इसे मारना जरूरी है। आपने आलस के विषय में, प्रमाद के विषय में या निंद्रा के विषय में सुना होगा कि आलस, प्रमाद और निंद्रा हमारे शत्रु है। 2-3 गुरुवार पहले भी मैंने लिखा था कि आलस नमक की तरह होती है जो हमें भीतर से हमें खा जाती है। ऐसे 2-3 रूपक में मैंने आलस के लिए लिखा था, प्रमाद के लिए लिखा था। तो आलस को मित्र भी कहा, शत्रु कहा गया कि आलस, प्रमाद और निंद्रा शत्रु है। लेकिन मेरा मानना है कि आलस, प्रमाद और निंद्रा शत्रु से भी ज़्यादा दैत्य है, राक्षस है। जो शत्रु होता है वो प्रहार करता है। शत्रु का प्रहार आता है तब आपको पता चलता है। लेकिन जो राक्षस होता है वो प्रहार नहीं करता। राक्षस हमें क्षीण करता है, राक्षस हमें प्रभावित करता है, राक्षस हमें अपने नियंत्रण में ले लेता है। इसलिए आपने पौराणिक कथाएं पढ़ी होगी, और पौराणिक कथाएं जहाँ पढ़ी होगी वहाँ राक्षस के चरित्र को पढ़िए कि राक्षस कभी सीधे आक्रमण नहीं करते थे। राक्षस पहले व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, उसकी शक्ति को क्षीण करते हैं, और उसके बाद उसका ग्रास कर लेते हैं, उसका विनाश कर लेते हैं। और ऐसे ही कई राक्षसों को आपने पुराणों में पढ़ा होगा कि हिरण्यकश्यप रूपी दैत्य साम्राज्य उसने स्थापा था। उसके पास जितने भी मानव थे उसको उसने प्रभावित किया था। भगवान का नाम न लिया जाए, उसका ही नाम लिया जाए, ऐसी एक संस्कृति उसने अपने देश में चलाए रखी थी। और वहाँ हम देखते हैं कि ज्ञान देने वाले षड़ा अमर्क जैसे
अभ्यास करवाने वाले गुरु भी केवल और केवल उसको ही भगवान मानते थे। तो राक्षस क्या करता है? राक्षस प्रभावित करता है। रावण ने पूरी लंका को प्रभावित करके रखा था, और पूरी लंका में एक विभीषण ही था जो मानव से देवकोटि की ओर जाता था। बाकी रावण ने सबको प्रभावित करके रखा था। जितने भी राक्षस होते हैं वो प्रभावित करते हैं, और धीरे 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 अपनी शक्तियां वो क्षीण कर देते हैं। इसलिए आपने देखा कि मारीच ने मृग का रूप लिया और सीता को प्रभावित किया, कि वहां से मृग रूपी हिरण जाता है, मृग सोने का हिरण जाता है वहां से, और माता सीता कहती है कि मुझे इसके चमड़े से, इसकी त्वचा से मुझे वस्त्र बनाने हैं, और भगवान राम उसके पीछे दौड़ते हैं। और इसीलिए कहा असंभवस्य हेम मृगस्य जन्म, कि कभी भी सोने का मृग हो ही नहीं सकता। राम भी ज्ञानी है, सीता भी ज्ञानी है, फिर भी प्रभावित हुए कि सोने का हिरण है, इसका शिकार करे, मेरे लिए इसे लाया जाए। राम भी मोहित होते हैं, राम भी उसके पीछे भागते हैं। यानी पहले प्रभावित किया जाता है, बाद में शक्तियों को क्षीण किया जाता है। राम ने तीर चलाया और जैसे तीर लगा वैसे मृग मारीच बन गया, और यहाँ मायावी जाल रची जाती है और वहाँ सीता का हरण हो जाता है। रावण भी आया था साधु के वेश में, सीता को प्रभावित किया। सीता माता की जो सोच थी उसको क्षीण किया गया, वो सोच ही नहीं पाई। साधु के रूप में आके उसको प्रभावित किया कि ऐसे समय में आने वाले, इस जंगल से यहाँ भिक्षा लेने के लिए आने वाले कोई साधु, इतने प्रखर साधु होंगे। तो साधु के रूप में प्रभावित किया गया, उनकी सोच की शक्ति को क्षीण किया गया, और उसके बाद एक माया रचते हुए सीता का हरण हुआ। तो ये आलस, निंद्रा और प्रमाद शत्रु नहीं है। अगर शत्रु है तो उसका आक्रमण होता है, लेकिन ये शत्रु नहीं है। ये तीन जो है ये राक्षस है। इसलिए आप देखें कि हमारे जीवन में जब आलस का प्रभाव बढ़ता है तो हम आलस के अधीन हो जाते हैं, हमारी श्रम करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, हम आलस के अधीन होते हैं। हमें प्रमाद हो जाता है, तो प्रमादी जो व्यक्तित्व है वो व्यसनों के अधीन हो जाता है, और व्यसनों के अधीन होने के कारण वो नशे में हो जाता है, उसे कुछ सूझता नहीं है। और निंद्रा ये भी एक राक्षस है कि निंद्रा हमारा हरण करती है। निंद्रा हमारे पर प्रहार नहीं करती, अधिक निंद्रा, अति निंद्रा हमारे ऊपर अतिक्रमण करती है, और उसके धीरे 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 हम उसके वश हो जाते हैं। आलस, प्रमाद और निंद्रा के वश हम जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे हमारी शारीरिक क्षमता जो होती है वो समाप्त हो जाती है। हम मेहनत नहीं करते, हम स्थूल बन जाते हैं। हमें बिना मेहनत के वहीं बैठे बैठे सब चाहिए। हमारी सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है, यानी हमारा मानसिक बल समाप्त हो जाता है। शारीरिक श्रम खत्म हो गया, हम पुरुषार्थ से दूर हो जाते हैं, हम पुरुषार्थ नहीं करते। आप देखें, ये हमारे घर में नियम होता है, जब बच्चे छोटे हैं तभी उसको संस्कार देने चाहिए कि कोई आए तो उसे पानी दिया जाए। मैं अतिथि देवो भव, अतिथि आए तो उसे बिठाना चाहिए, कोई मेहमान आए तो उसे पानी देना चाहिए, कोई पानी मांगे तो भी उसे देना चाहिए। माँ बाप जो कहे, जो लाने के लिए कहे उसे जाना चाहिए, लाना चाहिए। माँ बाप के आदेशों का पालन करना चाहिए।
जब विद्यार्थी स्कूल में जाता है तो विद्यार्थी आज्ञा नहीं देता, शिक्षक आज्ञा देता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें यह अभ्यास करना है, तुम्हें ऐसे रहना है। तो ये सब जो दिया जाता है वो श्रम है कि तुम्हें पुरुषार्थ करना है। लेकिन मानो कि हमारे घर में बालक है, एक बार बालक मांगे उसे हम पानी दे दे, दूसरी बार मांगे वापस दे दे, बाद में वही बालक खुद पानी नहीं पिएगा, आपके लिए वो बालक ही रहेगा। लेकिन जितना भी बड़ा हो जाए वो हमेशा अपनी माँ के पास पानी मांगेगा, अपनी माँ के पास खाना मांगेगा। ऐसा मैंने देखा है। तो बालक इतना बड़ा हो गया, वो कुर्सी से उठ के कुछ ले नहीं सकता, लेकिन बैठे बैठे माँ को ऑर्डर करता है। तो ये क्या हुआ? आलस। कि बालक का कर्तव्य, संतान का कर्तव्य है कि माँ की सेवा करे, यहां उल्टा होता है। उसे सब हाथ में देने के बाद माँ उसकी सेवा करती है, और धीरे 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 वहीं से आलस शुरू हो जाती है। तो आप सोचिए कि ऐसी छोटी छोटी आदतों से जब हमें आलस लगनी चालू हो जाए, और आज आप देखते हैं कि विज्ञान ने इतनी सुविधा कर दी है कि हमें सबसे ज़्यादा आलस हमारे जीवन में आती है। एक नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम इतने आलसी हो जाते हैं कि हम एक जगह पे ही बैठे रहते हैं। पहले हम जब छोटे थे तब साइकिल पे स्कूल पे जाते थे, जैसे जैसे बड़े हुए, बड़ी गाड़ी मिली, तो यहाँ से नाके पे जाना हो तो साइकिल नहीं, अब गाड़ी पे ही जाते। 2 मिनट के रास्ते में किक मारो और जाओ। आप सोचिए, पहले के समय में फानस थे, पहले के समय में दिए थे, लगाए जाते थे। अब बिजली के बल्ब आ गए, बटन दबाते ही शुरू हो जाते। और आज की तारीख में तो बेड के ऊपर ही बटन होते हैं कि सोए सोए आप चालू कर दो। रिमोट कंट्रोल आ गए कि आपको जो चाहे वो सोए सोए आप दबा सकते हो और वो देख सकते हो। मोबाइल हुआ कि बैठे बैठे सब चीज़ का ऑर्डर हो सकता है। तो देखिए, विज्ञान जीवन को गति देने के लिए बना है, समय को बचाने के लिए बना है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी आदतों से जो हमें आलस चढ़ी है, वो आलस एक जगह से दूसरी जगह हमें जाने नहीं देती। हम हमारे घर में भी वहीं बैठे रहेंगे। आजकल के लड़कों को मैंने देखा है कि आप किसी के घर में मिलने के लिए जाओ तो माँ बाप मिलते हैं, लड़के नहीं मिलते। कहाँ गया है? वो रूम में है, थोड़ा काम कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है, 10 मिनट गई, 15 मिनट गई, माँ बाप बुलाने के लिए जाते नहीं। क्यों नहीं जाते? नहीं, वो जरा काम कर रहा है, क्योंकि माँ बाप जानते हैं आने वाला नहीं है वो। और अंदर जाके जरा रूम में जाके देखा जाए तो वो कुछ नहीं करता, मोबाइल पे ऊपर बैठा है। अगर कुछ काम चल रहा हो तो भी अच्छा है, काम नहीं चलता, मनोरंजन चलता है। अब आप सोचिए, वहाँ बैठे बैठे ही थाली का ऑर्डर हो जाता है और अपने रूम में ही थाली जाती है। कोई आए, अतिथि देवो भव, उसके साथ बात करना, ये जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें थी आदर सत्कार की, वो चली गई। तो आलस जो होता है, आलस धीरे 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 आपको वश में करता है, और आलस होने के बाद शारीरिक क्षमता हमारी कम हो जाती है। आज कई जगह पे हम देखते हैं कि सिटियों में जिम खुले, पहले अखाड़े थे। और पहले का हमारा सबका व्यवहार भी ऐसा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चलते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते थे, सबके साथ घर पे आना जाना रहता था, हमारी सभी प्रवृत्तियाँ वैसी थी। लेकिन आज क्यों जिम आए? क्योंकि हमारे जीवन में स्थूलता आ गई, और स्थूलता आने के बाद हमें टाइम निकाल के उस जिम में जाना पड़ता है, वहाँ कसरत करनी पड़ती। बाकी पहले के समय के जितने भी व्यवहार थे वो स्वाभाविक क्षमता वाले व्यवहार थे। आज खेत कम होने लगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी, खेत नष्ट होने लगे, तो जो किसान भी खेत में जाता था, श्रम करता था, आज वो भी खत्म होने लगा।
जितने साधन बढ़े उतना जीवन सीमित हुआ, उतने हम आलसू हो गए। और वहाँ क्या होता है, वहाँ श्रम करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। साथ साथ में मानसिक बल समाप्त हो जाता है, सोचने की क्षमता, विचारने की क्षमता, यह बल समाप्त होता है। क्योंकि आप जो भी सोचते हो वो सोचने की मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। पहले जब खत लिखे जाते थे तब सोच के लिखना पड़ता था, आज सभी चीज टाइपिंग में होती है। आप तुरंत ही व्हाट्सएप के ऊपर निकाल सकते हो, 1 ही मिनट में वो पहुंच जाता है। तो लिखने की क्षमता कहाँ गई, सोचने की क्षमता कहाँ गई? हम कुछ भी आयोजन करें उसके लिए सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो रचनात्मक जो क्षमता थी वो आलस में, प्रमाद में वो समाप्त हो जाती है। आदमी सोच नहीं सकता, आदमी कुछ कर नहीं सकता। जहाँ सोचना खत्म हो जाए, जहाँ श्रम करना खत्म हो जाए, वहाँ निंद्रा आएगी। क्योंकि आप जो भी खाते हो, यहाँ शुरुआत ही भोजन से होती, ज़्यादा से ज़्यादा खाने से। कि आप जो भी खाते हो उसमें बाद में बैठे रहने से आलस चढ़ती है। आलस चढ़ने के बाद श्रम करना बंद हो जाता है। श्रम करना बंद हो जाने के बाद सोचना बंद हो जाता है। और जहाँ सोचना बंद हो जाए वहाँ क्या हो, वहाँ निंद्रा दीन हो जाते हैं। वहाँ हमें निंद्रा और तंद्रा आती है। हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं। उसी के कारण हमें आलस चढ़ जाती है, हम वहीं बैठे रहते हैं। सोचना हमारा बंद हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें निंद्रा आने लगती है, शरीर में रोग फैलने लगते हैं। और वही रोग विनाश का कारण बनते हैं। इसलिए आलस, प्रमाद और निंद्रा ये ऐसे शत्रु है जो आपको मोहित करते हैं, आपको वश करते हैं। और इसलिए आप देखिए, जो व्यक्ति आलसू होता है उसे बैठे रहने में मजा आता है, उसे देख के हमें दुख होता है, हमें कंटाल आता है। આપણે નથી કહેતા આખો દાડો બેઠેલો રહે, કંઈ કરે જ નહીં, એને પાછું મજા જોઈએ, એને આનંદ હોય। वो खुद का भी नहीं सोचता, उसके लिए हमें सोचना पड़ता। निंद्रा, अति निंद्रा। देखिए, निंद्रा का विषय बहुत गहन है। निंद्रा ऐसा विषय है जिसके लिए आज तक कोई बहुत कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि निंद्रा केवल राक्षस नहीं है। निंद्रा हमारे जीवन के लिए एक एनर्जी भी है। और इसीलिए ये एक ऐसी अवस्था है, शरीर के विश्रांति की एक ऐसी अवस्था जो हमें नए काम करने की ऊर्जा दे। लेकिन यही निंद्रा जब अति हो जाए तो यही निंद्रा हमारे जीवन के लिए मृत्यु का कारण है। इसलिए निंद्रा का विषय मनोवैज्ञानिक भी है, निंद्रा का विषय आध्यात्मिक भी है, निंद्रा का विषय शारीरिक भी है। इसलिए उसे नाम ही दिया गया कि निंद्रा। निंद्रा का अर्थ है आगे का काम करने के लिए थोड़े समय की एक विश्रांति, उसे कहा जाता है निंद्रा। दिन में 24 घंटे हो और उसके लिए कहा गया कि 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे सोने से 16 घंटे काम करने की क्षमता बढ़ती है। और जब हम निंद्राधीन होते हैं, तो जब निंद्राधीन हम हो जाते हैं तब हमारा मन और हमारी इंद्रिया, मन शांत नहीं होता, इंद्रिया शांत हो जाती। इंद्रिया जैसे शांत हो गई, बाहर दौड़ती हुई बंद हो गई, वैसे मन शांत हो गया। क्योंकि इंद्रिया जो देखती है वो मन के ऊपर उसका असर होता है, मन उसकी ओर भागता है। अभी आंखों ने देखना ही बंद कर लिया, कानों ने सुनना बंद कर लिया, पैर ने चलना बंद कर दिया, हाथ पैर ने हिलना बंद कर दिया, मुंह ने खाना बंद कर दिया, तो क्या होगा? अपने आप मन अकेला पड़ेगा। और जैसे मन अकेला पड़ेगा, मन शांत हो जाएगा, वैसे दिन भर का जो श्रम हमारी इंद्रियों को लगा है उसे विश्राम मिलेगा।
और उसे विश्राम मिलने के कारण हमें स्वाभाविक निंद्रा आएगी। यानी जब आपका मन अकेला हो जाता है, इंद्रिय की चहल पहल जहाँ बंद हो जाती है, वहाँ स्वाभाविक रूप से मन शांत होने से एक स्वाभाविक निंद्रा होती है, और वह स्वाभाविक निंद्रा हमें नई ऊर्जा देती है। हमारी इंद्रियाँ थोड़ी शांत पड़ती है तो उसमें ऊर्जा आती है। और इसलिए कहा गया कि शरीर के लिए निंद्रा जरूरी है, स्वाभाविक निंद्रा। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रा रूपेण संस्थिता, निंद्रा देवी कहा गया है। जैसे बालक को माँ अपनी गोद में सुलावे, वैसे निंद्रा की गोद में हम अपने आप चले जाते हैं। निंद्रा की गोद में हम गर्ता शयंती, हम सरक जाते हैं। निंद्रा हमारे ऊपर धीरे धीरे हावी होती है, उसे कहा गया है स्वाभाविक निंद्रा। बालक छोटा हो तो 12 घंटे सोए, ज़्यादा से ज़्यादा सोए, लेकिन जैसे वो जगता है वैसे वो मस्ती करता है, दूसरों को सोने नहीं देता। उसके बाद हम 8 घंटे सोते हैं हमारे पूरे जीवन में। और जैसे जैसे हमारी कार्य क्षमता बढ़ने लगे, हमारी उम्र बढ़ने लगे, वैसे वैसे हमारी नींद 6 घंटे की हो जाती है। धीरे 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 और उम्र हो जाए, नींद 4 घंटे की हो जाती है। जितना मन सक्रिय होगा, जितना मन संकल्पित होगा, जितना मन ज़्यादा विचार करेगा, उतनी निंद्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन निंद्रा स्वाभाविक होती है। जैसे भूख स्वाभाविक, वैसे निंद्रा। शरीर के तंत्र को चलाने के लिए एक स्वाभाविक निंद्रा आवश्यक है, जो स्वाभाविक निंद्रा हमारे जीवन की संजीवनी है। इसलिए सबको सोना होता है, तो हम स्वाभाविक निंद्रा में चले जाते हैं। अब देखिए कि निंद्रा कब आती है। तो जब रात पड़ जाए, घर के जितने लोग हैं अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाए, हम अकेले पड़ जाए, बाद में बैठे रहते हैं, सोचते हैं अब कोई काम नहीं, रात का समय हुआ, धीरे धीरे हम अपने कक्ष में चले जाते हैं। जैसे हम उठ के अपने कक्ष में गए, बाहर की दुनिया छूट गई। अपने कक्ष में आए, दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, बाहर की दुनिया चली गई, घर की दुनिया चली गई। जैसे घर की दुनिया चली गई, हम बिस्तर पे आके लेट गए, वैसे हमारे शरीर के विचार, मन के विचार चालू हो जाते हैं, शरीर की क्रियाएं चली गई। जैसे शरीर की क्रियाएं चली गई, धीरे 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 हमारी आंखें बंद हो जाती है, तो हमारा मन जो विचार करता है वो शांत हो जाता है, और अपने आप दुनिया से विरक्त होने के बाद हम अपने आप स्वाभाविक निंद्रा में चले जाते हैं। तो निंद्रा का एक प्रकार होता है स्वाभाविक निंद्रा, जो जरूरी है। निंद्रा का एक दूसरा प्रकार होता है जिसे कहा गया है तामसी निंद्रा। तामसी निंद्रा का मतलब अति निंद्रा, जो ज़्यादा खाने के बाद आती है, जो नशा करने के बाद आती है, जो हमारे जीवन में आलस चढ़ने के बाद जो आती है, वो होती है अति निंद्रा, ज़्यादा निंद्रा। यह ज़्यादा निंद्रा हमारे शरीर को नुकसान करती है। किसी ने नशा किया, ज़्यादा नशा हो गया, तो आदमी चल नहीं पाता, अपना कंट्रोल खूब गवा बैठता है। मन के ऊपर का कंट्रोल चला जाए, बुद्धि के ऊपर का कंट्रोल चला जाए, शरीर के ऊपर का कंट्रोल चला जाए, तो आदमी को नींद चढ़ती है। उस नींद को तामसी नींद कहते हैं। और वैसी जहां व्यसनों के द्वारा नींद आए, कुछ खाना, ज़्यादा खाना खाने से हमें नींद आए, ऐसा सुख हमारे जीवन के लिए रोग का कारण बनता है, शिथिलता का कारण बनता है। और उसके बाद जो निंद्रा होती है विकारी निंद्रा, कि जो विकारी निंद्रा रोग के कारण आती है। कई लोग ज़्यादा सोते हैं तो रोग के कारण भी आदमी, बुखार होता है तो आदमी सो जाता है, रोग के कारण, विकारी निंद्रा, रोग के कारण निंद्रा। किसी को बहुत कुछ अंदर प्रॉब्लम हो, हमें लगता है सोते रहता है, बाद में आप उसका परीक्षण कर जांच करवाओ तो उसमें रोग निकलता है। तो रोग के निंद्रा वो विकारी निंद्रा की जाती है कहीं कहीं। तो ऐसी 3 प्रकार की एक
निंद्रा के 3 प्रकार हैं, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से जो निंद्रा आती है वो सर्वोत्तम है। बाकी जो निंद्राएं है वो निंद्रा हमारे विनाश का कारण है। और जहाँ ज़्यादा खाने के बाद, व्यसन करने के बाद, स्थूलता के कारण हमें जो निंद्रा है वो निंद्रा का कोई टाइम नहीं होता। जहाँ भी आप बैठो, आपके विचार बंद हो जाए, आपको निंद्रा आ सकती है। उसे कहते हैं तंद्रा। एक निंद्रा का एक प्रकार होता है तंद्रा, और तंद्रा का मतलब है 2-2 मिनट के लिए निंद्रा आना, જેને આપણે કે ઝોકું ખાવું, બેઠા બેઠા ઝોકા ખાઈ જવાય। ઘણાની ઉંમર હોય અને ઘણા ઉંમરલાયક માણસો ઝોકા ખાય તો સારું લાગે, ઘણા જુવાન જોધ માણસો ઝોકા ખાઈ જાય। આપણે જે વાત કરતા ધીમે ધીમે આંખો બંધ થઈ જાય। આને શું કહેવાય? તંદ્રા કહેવાય। ખાધા પછી જે આવે તે તંદ્રા છે। कभी आपने ज़्यादा खाना खा लिया, बाद में देखिए आप, ज़्यादा खाना खाने के बाद तंद्रा चढ़ती है, इन्हें कहवाय झोंका। थोड़ी थोड़ी वारे झोंकू खाओ तो ये तंद्रा है। ये तंद्रा ए विकार, आळसनी शरूआत थई गई एम तमे मानो। नाना छोकराने झोंका नहीं आवे, जे एकदम नाना होय तेने बिल्कुल नहीं आवे, पण जेम जेम आपणी उंमर वधती जाए तेम तेम झोंका आवे। ए झोंका नुकसान करता है। અને ઝોંકા પાછા એવું છે કે ઝોંકા ગમે ત્યાં આવી જાય। તમે ચાલુ ગાડી ચલાવતા ને તેમાં બી ઝોકું આવે, ને ઘણા એક્સિડન્ટ થઈ જાય કે બપોરના એક્સિડન્ટ થઈ ગયું, કેમ તો ખાધા પછી ગાડી ચલાવી, ઝોકું આવી ગયું, સ્ટીયરિંગ ફરી ગયું। એટલે પેલા ગાડીમાં ગાડી ચલાવતો હોય તે આજુબાજુવાળાને કહે કે ભાઈ ઊંઘતા નહીં, એમ કે ઘણા બાજુમાં બેઠેલા હોય તો એવું ઝોકું ખાય કે પેલા સ્ટીયરિંગવાળો હોય ડ્રાઈવરના માથા પર એનું માથું પડે, એટલે એવા માણસને બાજુમાં બેહાડે નહીં। પછી ઘણા માણસ હોય તેને રાતના ઝોકા, ગાડી ચલાવતી વખતે રાતના ડ્રાઇવિંગ કરવાની ના, કે ગાડી ચલાવતા ચલાવતા ઝોંકું આવી ગયું, સાવધાની હટી, દુર્ઘટના ઘટી, પછી એક્સિડન્ટ। આ શું છે? અને એ ઝોકું ન આવે એના માટે એ લોકોએ તમાકુ ખાવું પડે, એના કારણે માવા ગુટકા ખાવા પડે મનને તેજ રાખવા માટે। આ શું થાય? આને કારણે આપણે તામસી નિંદ્રામાં જવા માંડીએ। પછી આના કારણે આપણને આળસ ચડવા માંડે, શરીરના બધે અંગોને નુકસાન થાય। तो इसे कहते हैं तंद्रा। कई लोग प्रवचन में बैठते हैं, उसे तंद्रा आती है। घણા લોકોને એવું જોવે બેઠેલા બેઠેલા ભાઈ ઝોકા ખાઈ, એમ આ જ્યારથી કેમેરો આવી ગયો છે ત્યારથી ફાયદો થયો છે। આજુબાજુ આ ઝોંકાવાળાને જોવાનો પ્રોગ્રામ બંધ થઈ ગયો, એટલે મને બી પછી એવું લાગે કે બધા આ લોકડાઉન બંધ થઈ જાય ને પછી આ કેમેરા સિસ્ટમ રાખવા જેવી જ છે કે આજુબાજુ નજર જાય તો પછી મને કંટાળો આવે બોલવાનો। પણ આમાં ઉલટું થઈ ગયું છે, આ કેમેરા બાજુ જોવાનું, એટલે આજુબાજુ તમે અફડાયા કરતા હોય તો મને કંઈ ફરક નથી પડતો। ઘણા બધા દૂરથી જ પ્રવચન સાંભળી લે, એટલે ત્યાં પણ પ્રવચન ચાલતું હોય તો ચાલુ ટીવીમાં બી ઝોકા આવતા હશે। જોજો તમે આજુબાજુમાં જે તમે પ્રવચનમાં તમારા ઘરે બે ને તેને ઝોકા આવતા હશે। મારું તો એટલું જ માનવું છે। ઘણા મને કે દાદા આમને અમે તમારા પ્રવચનમાં ઊંઘતા જોયા, એમ કે હવે તમે એને પાછું ઉઠાડીને પૂછો તો એમ કે ના ના અમે જાગતા જ છે, એમ કે એ તો અમે સાંભળતા હતા, એમ કે નિંદ્રા સમાધિ અવસ્થા, એમ કે અમે સાંભળતા જ હતા, એમ। એટલે આવા જે ઝોંકા મારતા હોય ને તેની સામે આપણે કંઈ પણ કરો એની દલીલ બહુ મોટી હોય, તમે પહોંચી નહીં વળો। એટલે હું તમને એક ઉપાય બતાવું આવા માટે શું કરવું જોઈએ। એને જગાડતા પણ નહીં તો હિંસા કહેવાય પછી। આ તો આવા જે ઝોંકા મારતા હોય ને તો તેના માટે શું કરવું? હા, તમારી બાજુમાં હોય ને ઝોંકા મારતા હોય ને તમારા ખભા પર માથું પડતું હોય તો તમે બોલી દો, પણ આજુબાજુ હોય ઘણા ઘોરાટતા હોય, તમારા ઘરમાં બી હમણાં ટીવી પર પ્રવચન જો ચાલતું હોય તો બાજુમાં બેઠા બેઠેલા ઊંઘતા હશે, એવાને જગાડો નહીં, કારણ કે એવા પાછા જાગે ને આપણને શ્રાપ દે તો એ નડે પાછું, આપણી ઊંઘ હરામ। એના માટે તમને એક ઉપાય બતાવું। શું કરશો? આવી રીતના જ્યારે ઊંઘતા હોય ને ચાલુ પ્રવચનમાં તો તમારા મોબાઈલમાં એને ઉતારી લો। એ ઘોરે તે બી ઉતારી લેવાનું ને પ્રવચન ચાલતું હોય તે બી ઉતારવાનું, અને પછી એ ઉતારીને એને બતાવો। એકવાર જોઈને એટલે એને શરમ આવશે કે અંદર ગઈને સૂઈ જવું સારું,
અને બીજી વારમાં નહીં સમજે ને તો એને ઉતારી લો ને પછી તમારા ફેમિલીના ગ્રુપમાં વાયરલ કરો. અને પછી આવું થશે ને એટલે શરમ આવશે. એ શરમ આવે એટલે પેલું આ નાટક બંધ થઈ જશે. એટલે ઘણા માણસો સત્સંગમાં સૂઈ જાય, प्रवचનમાં સૂઈ જાય. ये होता है, सो जाते हैं. उसमें उनका कोई दोष नहीं, निंद्रा उनके ऊपर हावी हो जाती, तंद्रा उनके ऊपर हावी हो जाती, तंद्रा के अधीन हो जाते हैं. मगर ध्यान रखिए कि जब ऐसी तंद्रा जीवन में शुरू हो जाए तो आपकी गति रोग की ओर जा रही है, ऐसा आप समझना. तो स्वाभाविक निंद्रा, आलस के कारण जो भी आए वो तामसी निंद्रा, और रोग के कारण जो आए वो विकारी निंद्रा. लेकिन जब तंद्रा आनी शुरू हो जाए कहीं भी किसी भी मौके पर, जहाँ आपको नींद लगनी शुरू हो जाए, उम्र कम हो और नींद लगनी शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए आलस, प्रमाद, निंद्रा, ये 3 प्रकार का जो शत्रु है वो शत्रु ने आपको वश करना शुरू किया है. आगे जाके यही सब रोग के अंदर परिवर्तित हो जाएगा. इसलिए निंद्रा स्वाभाविक अच्छी है, बाकी की 2 निंद्रा आपके जीवन के लिए हानिकारक होती है. और आध्यात्म में भी निंद्रा होती है. उस आध्यात्मिक निंद्रा को योग निंद्रा कहते हैं, क्योंकि जब हम सो जाए तो इंद्रियां शांत होती है, मन चलता है. तो जब मन चलता है तो सपने आते हैं. ये चालू मन के कारण सपने आते हैं. जो आप नींद में जो सोचते हो वो सपने में दिखता है, और जो नींद में सोचने के बाद जो सपने में दिखता है वो हमें याद रहता है. कहीं हम भूल जाते हैं, लेकिन सपना कभी सच नहीं होता. जागृति में जो आए वो सच होता है. लेकिन कई लोगों की आदत सिर्फ सपने देखने की होती है, वो सुस्ती, वो विकारी निंद्रा कहो या तामसी निंद्रा कहो, कि ऐसी तामसी निंद्रा में जब दिमाग चले तब भी हमें सपने आते हैं. और इसलिए कहा गया कि कौन सी निंद्रा लाभदायी है, जो इस निंद्रा में स्वप्न ना आए, ऐसी निंद्रा आपके लिए ऊर्जा बन जाती है. जैसे मोबाइल आपका डिस्चार्ज होने लगे तो मोबाइल की बैटरी आप प्लग में डाल देते हो, मोबाइल को रिचार्ज करते हो. तो मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए 20 मिनट 25 मिनट जब आप रखो तो 100% बैटरी हो जाती है. वो 100% बैटरी पूरे दिन चलती है. हाँ, लेकिन उस मोबाइल पे बार बार अगर फ़ोन आए तो, बार बार मैसेज आए तो, आप कितना भी समय फ़ोन को रिचार्ज करो फिर भी वो फ़ोन चार्ज नहीं होता, क्योंकि उसकी बैटरी क्षीण होती रहती है. ठीक वैसे ही है कि जब आप सो जाओ और सोने में जब वैकल्पिक सपने आने लगे तो सपने आने के कारण हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, हमारी ऊर्जा डिवाइड होती. और ऐसी सपने जहाँ आए, वैसे सपने के बाद की जो आप नींद उठो तो वो नींद में से उठने की इच्छा नहीं होती, आपको पड़ा रहने की इच्छा होती है. जागने के बाद भी आप सोए रहते हो तो पड़े रहने की इच्छा होती है. ऐसे ही जो इच्छा हो वो सुस्ती हो जाती है बात. इसलिए जब मन नींद में चलता है तो वो सपना बनता है. उस सपने को कहते हैं वैकल्पिक नींद, कि जहाँ सपने हमारे चलते हैं और वो सपने अच्छे भी लगते हैं. વચ્ચે જ મને કોઈ કીધું એમ કે દાદા મને એમ કે સપનું આવ્યું. હું આવ્યું? એમ કે સપનામાં એવું હતું કે બહુ મોટો મહેલ હતો એમ કે મારી પાસે. એમ કે બહુ સરસ. એમ કે 8-10 ગાડી, એટલા બધા રૂપિયા એમ કે, અને બહુ મોટું સિંહાસન એમ કે, ને એના પર પાછો હું બેઠેલો રાજા બનીને એમ. પછી બહુ બધા એમ કે મારા એમ કે નોકરો, પછી એમ કે મારી રાણી પણ ખરી એમ કે. મેં કહું કેટલી? એમ તો એમ કે એક જ, પણ પાછી કહેવાય નહીં એટલી બધી એમ. તો મેં કીધું એ એક તેમાં એમ કે આ જે છે તે ખરી, પણ આ બીજી બધી હો ખરી પાછી. હવે બીજી બધીના નામ પૂછ્યા તો નામ નહીં કીધા. પછી હવે તમે વિચાર કરો, સપનામાં રાજા, કે હું રાજા બની ગયો, તમને શું લાગે દાદા? એમ કે મેં કહું હવે નહીં બને, આ જે છે તે જ રહે. તો તમને એવું લાગે ખરું કે એમ કે આમાં આ સપનું સાચું પડે? કઈ રીતે પડે ભાઈ?
એ રાજા મહારાજાનો સમય ગયો. હમણાં આપણી પાસે રહેવા માટે સીધું પોતાનું ઘર નથી, આપણે ભાડેના ઘરમાં રહીએ છીએ. ગાડીઓ આપણે સેકન્ડ હેન્ડ વસાવી છે, જેમ તેમ મારી મછલીને લગ્ન થયા છે, જૂઠું બોલીને પાછા. હવે વિચાર કરો, એમ કે એવું કંઈ થાય કે નહીં દાદા, એ સપનું સાચું પડે? કઈ રીતે પડે? એ સપનામાં તમે ગમે તે હો, મૂળ स्थितिમાં જે हो તે જ રહેવાના છો. लेकिन सपने में जब हम चले जाए, उस सुस्ती में हम जब चले जाए तो ये प्रमाद हो जाता है. इसीलिए योग निंद्रा जो होती है, उस योग निंद्रा में जागृति और सुषुप्ति के बीच की अवस्था, जहाँ अर्ध जागृत अवस्था जिसे कही जाए, वो होती है योग निंद्रा. यानी जो हमारा मन है, हमारा मन हमारे आज्ञा चक्र की ओर जब स्थिर होने लगे, एक स्थिति में पैदा हो, आज्ञा चक्र की ओर जब वो स्थिर होने की तैयारी करने लगे, तब वो अवस्था अर्ध जागृत अवस्था होती है. उस अवस्था में नींद भी होती है और नहीं भी होती है. जगने की अवस्था और सोने की अवस्था के बीच की जो अवस्था है, उस अवस्था को योग निंद्रा कहा जाता है. और योग निंद्रा करने के लिए एक साधना होती है. क्या आपको सो जाना पड़ता है? स्वाभाविक रूप से जैसे सोए वैसे सोना पड़ता है. अपने आने जाने वाले सांसों के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ता है. आपका बायां पैर और आपका दायां पैर नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी आप अपने अंग है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है. और धीरे धीरे मैं शरीर हूँ वो भाव छूटने लगे, और मैं शरीर हूँ वो भाव छूटने लगे, मैं मन हूँ वो भाव में आप जाने लगो. और मन हूँ वो भाव में जब आप जाओ तो स्वाभाविक है कि आपकी गति आज्ञा चक्र की ओर चलने लगे. तो उस अवस्था को योग निंद्रा कहते हैं. वहाँ एनर्जी मिल सकती है. वहाँ नहीं नींद है, नहीं जागरण है, सुसुप्ति भी नहीं, जागृति भी नहीं, बीच की अवस्था प्राप्त होती है. और ऐसी अवस्था आधे घंटे के लिए रहती है. वहाँ हमें हमारे जितने भी अवयव है उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है. इसलिए योग निंद्रा, जहाँ अर्ध जागृत अवस्था, जहाँ आपका मन और आपका दिमाग दोनों चालू रहता है, उसे कहा जाता है योग निंद्रा. भगवान विष्णु जो शेष शैया पर सोए हैं वो योग निंद्रा. और योग निंद्रा में भगवान ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया. तो योग निंद्रा में जब हम कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो वो योग निंद्रा में निंद्रा के विकार चले जाते हैं. एक प्रकार का योग होता है जिससे हमारे सभी अंगों को ऊर्जा प्राप्त होती है. हम जब ध्यान करें तो ध्यान में हमारा मन आज्ञा चक्र में इन्वॉल्व हो जाता है, एकरूप हो जाता है. वो स्थिति जहाँ है उसे ध्यान. आज्ञा चक्र की ओर बढ़ने की शुरुआत करे वो योग निंद्रा. और जहाँ हमारा मन समाप्त हो जाए, हमारी मन और बुद्धि साक्षी भाव में जहाँ चली जाए, विलीन हो जाए, आत्म भाव में चली जाए, उसे कहा जाता है समाधि. समाधि में मन और बुद्धि का जो साक्षी भाव होता है वो समाप्त हो जाता है. सिर्फ आत्मभाव रहता है, वो समाधि. और समाधि जहाँ लग जाती है वहाँ कहते हैं कि गहरी निंद्रा की अनुभूति वहाँ होती है. और इसीलिए कहा गया कि निंद्रा समाधि स्थिति, गहरी निंद्रा की जो अवस्था, वो अवस्था और समाधि अवस्था एक है, निर्विकल्प है. वहाँ अनुभव होते हैं, सपने नहीं दिखते. वहाँ आप आत्मभाव में चले गए, वो प्रकाश दिखता है. वहाँ एक आनंद होता है. और वहाँ जो आनंद होता है उसका अनुभव अविरत होता है. उसे क्या कहते हैं? शून्य समाधि. ध्यान जब करें तो साक्षी भाव रहता है कि आपके सामने आप आपके आत्मा का दर्शन करते हो, एक ज्योत का दर्शन आपको दिखे, वो ध्यान, आज्ञा चक्र में स्थिर होना. और जहाँ साक्षी भाव समाप्त हो जाए, आत्मभाव में आप चले जाओ, वो समाधि. तो समाधि एक निंद्रा ही है, गहरी निंद्रा है.
लेकिन वहाँ स्वाभाविक निंद्रा नहीं होती, वहाँ तामसिक निंद्रा नहीं होती, वहाँ विकारी निंद्रा नहीं होती, वहाँ आलस नहीं होता, वहाँ आनंद अनुभव और नए संकल्प वहाँ पैदा होते हैं। और जहाँ नए संकल्प जहाँ पैदा हो जाए समाधि में, वहाँ समाधि लेने में जाने वाला पुरुष कभी भी स्वाभाविक निंद्रा में नहीं जाता। उसे इतनी एनर्जी मिलती है कि वो 24 घंटे वो कार्यरत रहता है। और इसीलिए कहा गया कि कैसी नींद हो, तो कहा गया राजा जनक के जैसी नींद हो, जनक के जैसी नींद कि सतर्क, समाधि में चला जाए तो कुछ पा ले, और जब उसकी राज्य की जवाबदारी आए तो कितने दिन तक वो सोए नहीं। जनक के जैसी नींद हो। कैसी नींद हो? विश्वामित्र के जैसी नींद हो, वशिष्ठ के जैसी नींद हो, कि जो विश्व की चिंता करते थे अपनी समाधि में जाके, और इसलिए चिंता करते थे, विश्विक अपनी चेतना को विश्व के साथ जोड़ते थे, और इसीलिए विश्व में कुछ होना है उन्हें पता चलता था। वो विश्व के लिए जागृत रहते थे। जब जगते थे सालों सालों तक जगते थे। तो विश्वामित्र के जैसी नींद हो, जनक राजा के जैसी नींद हो, और वैसी भी ना हो तो कैसी हो? छोटे बालक के जैसी नींद हो, कि बालक जैसे स्वाभाविक नींद में, गहरी नींद में चला जाए, आनंद में रहता है। आप देखिए, बालक जब छोटा होता है, सोता है, तो वो हंसता है, उससे आप हंसता हुआ देखते हो। हम देखते हैं, देखो बालक हंसता है, सपने में नहीं, वो सपने में नहीं होता। उसकी ऐसी अवस्था होती है जहाँ उसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, वो ईश्वर स्वरूप होता है। वो अपने निजानंद में अपने अंदर के परमात्मा के साथ वो हंसता है। એટલે આપણે કહીએ ને, આ એમ કે નાનું બાળક ખૂટેલું હોય ને હસે તો એમ કે ભગવાન હસાવે, સાચી વાત છે। वो अपने आप आत्मभाव में होता है, और जब वो हंसता है, समाधि वाला पुरुष हंसता है। इसलिए आप देखिए, शिव गोरख की प्रतिमा देखिए, हंसती हुई प्रतिमा है। जहाँ आंख बंद की है, मुख के ऊपर स्मित है, निजानंद का अनुभव। बुद्ध भगवान की प्रतिमा देखिए कि आंख बंद की हुई है, लेकिन प्रतिमा सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं, हंसती हुई प्रतिमा है। समाधि का अनुभव, गहरी समाधि का अनुभव। तो आध्यात्मिक निंद्राएं भी होती है। एक निंद्रा होती है वाम कुक्षी, कि इसमें विज्ञान है कि खाने के बाद बाईं ओर सो जाना, जहाँ हमारी सूर्य नाड़ी चालू हो जाए, और सूर्य नाड़ी जहाँ चालू हो जाए वहाँ हमने जो खाया है वो पच जाता है। इसलिए वाम कुक्षी कहीं गई। राम भगवान वाम कुक्षी करते थे, खाने के बाद सो जाते, ऋषि मुनि खाने के बाद सो जाते। हमारे बाएं ओर सो जाना वो वाम कुक्षी, मगर वो वाम कुक्षी कितनी हो? पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। लेकिन हम जो वाम कुक्षी करते हैं वो 3 घंटे उठते ही नहीं। घણા એવા માણસ હોય કે આવીને એમ કે બપોરે હુઈ જાય। મેં કહું કેમ હુઈ ગયા? વામ કુક્ષી કરીએ। તો વામ કુક્ષી કરે નહીં ને પાછા 1 વાગ્યાના હુએ તો 4 વાગે ઉઠે। આ કઈ કુક્ષી તે જ જાણે પાછી। વામ કુક્ષી કરવી આપણા હાથમાં નથી। યોગિક ક્રિયા જે કરતા હોય, યમ નિયમ આસમ પ્રાણાયામ જે કરતા હોય એ વામ કુક્ષી કરે। એમાં ચંદ્રનાળીમાં શ્વાસ જો જતો રહે, ડાબી બાજુ હુઈ જાઓ, ચંદ્રનાળીમાં શ્વાસ જાય, આપણે સૂર્યનાળીમાં શ્વાસ જાય, અને એ શ્વાસ જે જાય છે તેના કારણે પચી જાય ખાવાનું, પછી પિત્ત નહીં થાય, વા નહીં થાય, કફ નહીં થાય। એટલે બપોરનો સમય વામ કુક્ષીનો। આપણે નહીં કે બપોરના કોઈ ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાના, બારણા નહીં ઠોકવાના, ઊંઘવાનો સમય। પણ એ તો 1 કલાક ઊંઘવાનો સમય, તમે 5 કલાક ઊંઘી જાઓ છો। મારા બોર્ડ માં દે કે બપોરના સમયે કોઈ આવું નહીં, કેમ? તો वाम कुक्षी करिए। અને वाम कुक्षी नहीं कहवाय। वाम कुक्षी आधे घंटे खाने के बाद एक निश्चित समय खाने का हो, उसके बाद जो सोया जाए वो वाम कुक्षी होती, जिसमें खाना पचता है। अभी आप देखें कि निंद्रा के कितने प्रकार है। मानव निंद्रा स्वाभाविक, मानव में तामसी निंद्रा भी, मानव में तामसी निंद्रा, विकारी निंद्रा, ये मानवों में हो। लेकिन मानव की स्वाभाविक निंद्रा जब विकारी निंद्रा में चली जाए तो असुरी निंद्रा, रोग निंद्रा में चली जाए तो असुरी निंद्रा। हाँ, लेकिन देव निंद्रा में जाए तो योग निंद्रा, वो देव निंद्रा हो जाए। ध्यान में चले जाओ तो देव निंद्रा, धीरे धीरे करते हुए समाधि में चले जाओ,
ब्रह्म निंद्रा, यही निंद्रा ही है। लेकिन हमें कैसी निंद्रा चाहिए? लेकिन आज ज़्यादातर हम जो सोते हैं, आलस, प्रमाद से छुया हुआ हम सोते हैं। और इसलिए कहा गया है, सोएगा वो खोएगा। आलस से सोएगा वो खोएगा, और जागेगा वो पाएगा। जो योग निंद्रा में चला जाता है वो पाता है, समाधि में चला जाता है वह पाता है, वो पाएगा। यानी आज मैंने दो बातें की कि निंद्रा कौन सी हो, लेकिन राक्षसी निंद्रा भी कौन सी हो। અને આમાં લખ્યું ખોટું નથી થયું, લોકોને મેં રાક્ષસી નિંદ્રા કરતા બી જોયા છે કે આ બાજુના રૂમમાં ઘોરે તો પેલી બાજુ સંભળાય. હવે મારી હાથે અનુભવ ઘણા થયેલા છે કે ભાઈ આપણે રાતના પ્રવાસે જવાનું છે, તું હુઈ જા, બાજુના રૂમમાં ઊંઘાડું, સાલે મને જ નહીં ઊંઘવા દે આખી રાત. પછી તે દિવસે ત્યાર પછી નક્કી થાય કે આ રાક્ષસને કોઈ દાડો અહીંયા ઊંઘાડવો નહીં. હોલના પેલા ના કે ઊંઘે તો અહીંયા સુધી અવાજ આવે. કુંભકર્ણ નિંદ્રાને કહેવાય. શું કહેવાય? કુંભકર્ણ નિંદ્રા. એટલે જે ઘોરતા હોય ને તે હાચવીને ઘોરજો. એ ઘોરવાવાળાને ઊંઘ જોરદાર આવે, પણ આપણી ઊંઘ તોડી નાખે સાલાઓ. એટલે પછી ત્યારે એમ થાય કે આ લોકોની બાજુમાં ઊંઘવું જ નહીં જોઈએ. કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કાયમી અમારી ઊંઘ જતી રહી તો સારું. પણ મને તો ભગવાને શાંતિ આપી છે, કારણ કે હું એકલો જ ઊંઘું છું એટલે શાંતિ. પણ જે ઘણા બધા ઘરમાં હાથે ઊંઘતા હોય તેને તકલીફ પડી જાય છે. એકવાર અમારો એવું જ થયું કે અમે પ્રવાસ જવાના, તો એક જણને બોલાવ્યો પ્રવાસે, તો ક્યારે નીકળીએ? તો મેં કીધું ચાલો આપણે 3 વાગે નીકળીએ. તો તે દિવસે 11 વાગે હુવા હારું જતા રહી ગયા, બારણા બંધ કરી દીધા. હવે ભાઈનું નામ તો હું નહીં આપવાનું, આપણો નજીકનો જ છે, નામ નહીં અપાય. તો મને એના પર દયા આવી. મેં કહું આને રાતના અને મેં કહું એ ચલાવવાનું છે, તો મેં કહું મારા બાજુના રૂમમાં આવીને હુઈ જા. પરોપકારામ સંતમ વિભુ, એટલે આ મારું એક લક્ષણ કે પરોપકાર કરું, બાજુના રૂમમાં ઊંઘાડ્યો એને. અરે એ ભાઈ તો ઊંઘી ગયો. તો 11 વાગ્યા, 10 વાગ્યા, 11 વાગ્યા, 11ના 12 વાગ્યા, 12ના 2 વાગ્યા, જવાનું 4 વાગે. મેં ઉઠી જ ગયો ને બ્રશ કરીને નાહ્યો લીધું. પછી મેં કેમ તો પેલો એટલો બધો ઘોરે રાક્ષસની જેમ કે મારી ઊંઘ હરામ કઈ. તે દિવસે મેં નક્કી કર્યું કે હવે આને નહીં ઊંઘા, કોઈને નહીં ઊંઘાડવું. તો આવી રાક્ષસી નિંદ્રા આ બધી છે. આજે રાક્ષસી નિંદ્રાની વાત कि जहाँ राक्षसी निंद्रा हो जाए वहाँ कोई सोने नहीं देता. लेकिन निंद्रा आवश्यक है. आलस, प्रमाद से निकली हुई निंद्रा हमारे जीवन के श्रम को, बल को खा जाती है, हमारी आंतरिक ऊर्जा को वो खा जाती है. और इसीलिए कहा गया कि निंद्रा, आलस से आई हुई निंद्रा राक्षस समान, और ज्ञानपूर्वक साधना से आई हुई जो निंद्रा होती है वह निंद्रा समाधि समान, योग समान होती है. इसलिए समाधि का अनुभव करना हो तो गहरी निंद्रा. महाभारत में ऐसे 2 पात्र थे. एक पात्र था, 3 पात्र थे. एक पात्र था कुंभकर्ण, राक्षसी निंद्रा. 6 महीना सोना, 6 महीना जगना, और इतना जगना कि पूरी दुनिया का खाना खा लेना. ये कुंभकर्ण, राक्षसी निंद्रा. या समझ लीजिए कि विकारी निंद्रा, रोग से फैली हुई निंद्रा, उसे रोग था. कुंभकर्ण 6 महीना जगता था, सोता था, ये एक प्रकार का रोग था ये. तो ये राक्षसी निंद्रा. दूसरी निंद्रा ऐसी कही जाती है जिसका रामायण में उल्लेख नहीं है, और रामायण वो उससे समर्थन भी नहीं देता. लेकिन मेरे पढ़ने में आया कि एक निंद्रा निकाली थी उर्मिला ने. हमने पढ़ा कि लक्ष्मण चले गए और उर्मिला वहीं की वहीं खड़ी रही, और 14 साल तक उसकी राह देखती रही. लेकिन कई जगह पे ऐसी कथा भी है कि राम और सीता जब सो जाते थे तो लक्ष्मण सोचते थे कि ये दोनों सोए हैं, मेरा भाई सोया है, अभी मैं भी सो जाऊंगा तो इसका रक्षण कौन करेगा. इसलिए लक्ष्मण सोता नहीं था, लक्ष्मण जगता था. और ज़रूरी भी था कि मेघनाद को मारने के लिए इतना ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता था. सोना, जगना है, ब्रह्मचर्य पालन करना है, उसके लिए भी जरूरी था. तो वो पहरा देते रखा था. तो एक बार निंद्रा देवी आई, यानी नींद आई, निंद्रा देवी आई, प्रकट हुई, और उसने लक्ष्मण को कहा कि तू मेरा अनादर करता है, मैं पूरी दुनिया को सुलाती हूँ, तू क्यों नहीं सोता.
तब लक्ष्मण ने कहा कि मेरा मैं कर्तव्य कर रहा हूँ तो मैं जागूंगा, मैं जागृत रहूँगा, मैं सोने वाला नहीं, लेकिन तुझे सोना पड़ेगा, मैं नहीं सो सकता। तो तेरी जगह जो नींद जो है वो किसी और को भी निकालनी पड़ेगी। तब लक्ष्मण ने कहा कि मेरी पत्नी उर्मिला है, उसे जाके तू मिल, मेरी जगह वो नींद निकालेगी। बाद में वो निंद्रा देवी उर्मिला के पास गई और उर्मिला ने स्वीकारा कि मेरे पति जो कर्तव्य के लिए गए हैं उसे जगना होगा, तो मैं सोऊंगी। और ऐसे कहा गया है कि उर्मिला सोती रही, गहरी नींद में सोती रही, लेकिन वो 14 साल तक सोती नहीं रही। उसे सीता माता का आशीर्वाद मिला कि तू एक साथ 3 काम कर सकेगी, तू जगती भी रहेगी, सेवा भी करती रहेगी और सोती भी रहेगी। तो उसे ऐसा आशीर्वाद मिला कि वो गहरी निंद्रा में भी थी, वो जगती भी थी, और उसके परिवार के जितने थे, उसकी सांस थी, उन सबकी वो सेवा भी करती थी। इसलिए कहा गया कि गहरी निंद्रा में जो गए वो समाधि निंद्रा थी। उर्मिला समाधि निंद्रा में गई थी। जो कुंभकर्ण था वो विकारी निंद्रा में गया था, तामसी निंद्रा में गया। और जो लक्ष्मण जो था वो लक्ष्मण ब्रह्म निंद्रा में था, शून्य समाधि में था। इसीलिए 14 साल तक लक्ष्मण जगते रहा। तो यहाँ समझ में आता है कि देव कोटि, मानव कोटि और राक्षस कोटि। लक्ष्मण देव कोटि में था, जागृत रहा, ब्रह्म निंद्रा में रहा। उर्मिला थी, मानव कोटि में थी, तो गहरी निंद्रा में भी जाती थी, समाज के काम भी करती थी। और जो कुंभकर्ण था वो कुंभकर्ण राक्षस निंद्रा में था, और इसीलिए उसका जगने के बाद भी कोई फायदा नहीं। तो हमें निंद्रा के ऊपर काबू लेना है। जो पढ़ते हुए बच्चे हैं उसे निंद्रा के ऊपर काबू लेना पड़ेगा। તમારી પરીક્ષા આવે અને ઊંઘ આવે, ઘણાને વહેલું ઉઠવાનું નહીં ફાવે, ઘણાને વહેલું સૂવાનું નહીં ફાવે। તો જ્યારે તમારી 10મા અને 12માની ને આવી બધી પરીક્ષા હોય તો એના માટેનો તમારો ઊંઘવાનો શેડ્યુલ, વાંચવાનો શેડ્યુલ એ પ્રમાણે નક્કી થવો જોઈએ। કારણ કે તમે રાતના બહુ જાગો તો પછી દિવસના તમને ચોપડું પકડે તો ઊંઘ આવશે, ઘણા તો પેપર લખતા લખતા ઊંઘ આવે, પછી એ નહીં ચાલે। તમારો ઝોંકા તંદ્રામાં તમારો સમય બગડશે। માટે ખાવું જોઈએ, પણ એવું લિમિટેડ ખાઓ કે જે ખાવાથી ઊંઘ ઓછી ચડે। અને તમને જે સમય માફક આવતો હોય તે સમયે વાંચો। પરીક્ષા હોય ત્યારે માફક આવતા સમયે વાંચો। ઘણા બધાના ઘરમાં નિયમ હોય કે વહેલા ઉઠાડી દે, વહેલા વાંચો, પણ પેલો મોડો જ ઊંઘતો તો વહેલો ઉઠવાનો કઈ રીતે? પછી પાછું આપણું પકડી પકડીને ઝોકા મારે, અને પાછા પેલા આવે એટલે પાછો એમ જાગતો થઈ જાય। તો જ્યારે ફાવતું હોય ત્યારે વાંચો, જરૂરી નથી કે વહેલા ઉઠીને વાંચો। મોડે સુધી વાંચો તો મોડે સુધી ઊંઘ કાઢો, પછી ઉઠીને વાંચો। હું જ્યારે પરીક્ષા આપતો હતો તો મને કોઈ દિવસ વહેલા ઉઠવાનું ફાવતું નહીં હતું, મને પહેલાંથી જાગવાનું જ ફાવે। એટલે મારો જે વાંચવાનો સમય ચાલતો હતો રાતથી ચાલુ થતો હતો કે ખાઈ પીને બેસવાનું, 10 વાગ્યા પછી બેસવાનું, 2-2, 3-3 વાગ્યા સુધી વાંચવાનું, અને પછી ચોપડું મૂકીને સૂઈ જવાનું, સવારે મોડા ઉઠવાનું, મોડા ઉઠીને પાછું વાંચવાનું, નાહી ધોઈને ખાવાનું ને આ તે જે બધું કરવાનું, ને ફરી પાછું બપોરના 1 કલાક ઝોકું મારવાનું ને પછી પાછું વાંચવાનું। હું રાતના ખેંચતો હતો। એ હજુ બી મારી આદત ચાલુ જ રહી આજની તારીખમાં બી, કે હું ઊંઘતો નથી ને કોઈને ઊંઘવા દેતો નથી, એ આજની બી ચાલુ રહ્યું। ઘણા વહેલું તો પોતાના પ્રમાણે ઊંઘ 8 કલાક સેટ કરવી અને વાંચવાનો ટાઈમ નક્કી કરવો। પણ એટલું યાદ રાખજો કે જ્યારે તમે વાંચવા બેસો, અને જ્યારે વાંચવા બેસો તમારું મન જ્યારે સૌથી વધારે પ્રફુલ્લિત હોય ત્યારે વાંચો। અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને જો તમે વાંચો એકાંત સમયમાં, અને ખાસ કરીને તમારું પેપર હોય ને એના આગલે દિવસે, એમ તો આખું વર્ષ વાંચવું જોઈએ, પણ પેપર હોય તેના આગલે દિવસે સાંજ સમય, તમને અનુકૂળ સમયે જ્યારે તમે ચોપડું પકડો અને ગુરુ મહારાજને યાદ કરો અને પછી ચોપડી ખોલજો, અને એ સમયે 1 કલાકમાં જેટલા પ્રશ્નો આવે ને તેટલા જોઈ જાઓ, લખી રાખો, તમારા પેપરમાં આ જ પૂછાશે તે સમયે। આ બધો સમય ઓટોમેટિક સેટ થાય, અંદર આવવાનો હોય તે તમને સમય આવે તમારી સામે, પણ એવો સમય પકડવો કે જે તમને પ્રિય હોય, પણ પરીક્ષાના 24 કલાક પહેલાં।
આવી જાય અંદર. એટલે ઘણી વખતે દેવી કૃપા પણ કામ કરે, પણ ઊંઘવું, આળસને છોડવી એ બહુ જરૂરી છે. માટે નિંદ્રા એ રાક્ષસ છે અને શ્રમને, માનસિક બલને અને આપણી શક્તિઓના સામર્થ્યને ક્ષીણ કરે. એટલા માટે આપણે બધાએ જ આ निंद्रा त्याग करो. हमें सबके तामसिक निंद्रा और विकारी निंद्रा से हमें मुक्त होना चाहिए. लेकिन कैसे होंगे? तो ज्ञान पूर्वक. सहज निंद्रा है, उसे लेना भी है, लेकिन कभी भी हमें पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है. हमारे पुरुषार्थ की ओर हमें आगे बढ़ना है. प्रति मिनट हमें कार्यरत रहना है, अध्ययन करना है, ग्रंथों का अध्ययन, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आध्यात्मिक आश्रमों में सेवा करें, सामाजिक सेवा करे, और अपने भीतर में जो आलस है उसे दूर करे. और अगर निंद्रा योग्य रूप से होती है, आध्यात्मिक रूप से हो जाती है, तो वही निंद्रा आपके जीवन की संजीवनी बनती है. इसलिए 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हम भगवान को यही प्रार्थना करेंगे कि आलस, प्रमाद और निंद्रा रूपी राक्षस को आपके ज्ञान के शस्त्र से हम वध कर सके, ऐसा सत्संग हमें दीजिए कि जिस सत्संग के कारण हम हमारे भीतर की आलस, प्रमाद और निंद्रा का नाश कर पाए, हमारे जीवन को सुरक्षित कर पाए, और हम हमारे जीवन में सदा जागृत रहते हुए समाज सेवा, परिवार सेवा, राष्ट्र सेवा और विश्व सेवा कर पाए, और मानव कोटि से उत्थान करते हुए हम सब देव कोटि तक हम पहुंच पाए. ऐसी प्रार्थना 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए हम करते हैं. गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़बंग कानीफमच्छेन्द्रराज चौरंगी रेवाणक भृतुहरिसज्ञा भूम्याम्बभुरनमाथ सिद्धः. जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ. स्वामीनाथ महाराज की जय. छोटे दादा की जय. भंडारे में सीधा योगदान हुआ है. धीरूभाई छेतुभाई पटेल वागरेज 4 डजन बोरिक पाउडर, दिनेश भाई पटेल बामटी 100 किलो, 10 किलो बैंगन, 100 किलो आलू, भारतीबेन पटेल अंबाज 50 किलो बैंगन, रमलाबेन चौधरी सूरत 21 किलो चावल, भरत भाई पटेल मसाड़ 10 किलो कोबीज, मनीष भाई पटेल मसाड़ 6 किलो बैंगन, दिनेश भाई पटेल 50 किलो चीनी, शांतु भाई चौधरी 20 किलो बैंगन, 3 किलो गाय का घी, 2 किलो हरी धनिया, टेमका वड़पाड़ा सत्संग मंडल 13 किलो बैंगन, 1 किलो धना, माणिक भाई गामित डुसवाड़ा 25 किलो सक्करिया, खुशाल भाई पटेल 10 किलो चीनी, मंजूबेन व्यारा 10 किलो सक्करिया, 10 किलो आलू, हीरूभाई देशमुख सिदुम्बर 1700 नंग गाय के घास के लिए घास की व्यवस्था, अनुबेन गामित 500 नंग जुआर की जो पुड़ी आती है घास की वो उन्होंने दी है. और आज का भंडारा हर्षिल भाई जयेश भाई नायक की ओर से आज का भंडारा है जो तालुका पंचायत में वो विजयी हुए, हमारे गांव से है, और उनकी ओर से आज का भंडारा रखा हुआ है. दूसरी बात, महाशिवरात्रि कैंपेन 1,75,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हुए.
240 लोगों ने रील्स बनाए और कुंदन पाटिल, मीर जनमनवाला, राजेश भाई गुलाबकर, उनके जो रील्स थे वो सबसे ज़्यादा लाइक किए गए, सबसे ज़्यादा व्यूज़ भी उनको मिले। और एक अलग प्रकार के अंदाज़े से हमने हमारी संस्कृति के त्यौहार महाशिवरात्रि का प्रचार और प्रसार किया है। હર્ષિલભાઈ ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે। હર્ષિલભાઈનો આછો પરિચય કહું તો હર્ષિલભાઈ એ દેવસર એક બેઠક પરથી 2500થી વધારે મતની લીડથી ભવ્ય વિજયી થયા છે અને આજે ભંડારો પણ એમના તરફથી જ છે। એમનું માનવું છે કે પૂજ્યશ્રીની કૃપાથી જ એમને આ જીત મળી છે અને એમણે આજે ભંડારાનું આયોજન કર્યું છે। હર્ષિલભાઈ એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સક્રિય કાર્યકર્તા છે। એ ખાસ જણાવવાનું કે એમના માતાશ્રી પણ આપણે ત્યાં દર ગુરુવારે આવે છે અને વર્ષોથી આશ્રમ જોડે સંકળાયેલા છે। તો હર્ષિલભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। હવે હું એમને વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ પર પધારે અને પૂજ્યશ્રીના હસ્તકે પ્રસાદિક ભેટ ગ્રહણ કરે। હર્ષિલભાઈ સ્ટેજ પર પધારશો। તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે અભિવાદન કરીશું। માઇક પૂજ્યશ્રીની ચાંદીની નોટ ભેટ કરશે। તાળીઓનો ગડગડાટ ચાલુ રહેવો જોઈએ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। હર્ષિલભાઈને નમ્ર વિનંતી છે કે આ પ્રસંગે બે શબ્દ જરા બોલે। સૌને જય અવધૂત। તો અત્રે ઉપસ્થિત થયા છે, રાષ્ટ્ર ધર્મથી સર્વે જોડાયા છે, તો એકવાર રામનો જયકારો થઈ જાય। જય જય શ્રી રામ, શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ, જય જય શ્રી રામ। નમસ્કાર મિત્રો। આમ તો વર્ષોથી એટલે કે નાનપણથી હું આશ્રમ જોડે જોડાયો છું। મારા દાદા, પિતાશ્રી, માતાશ્રી સર્વે, અને વધુમાં તો કાંઈ બોલવું નથી। સવારથી થાક્યા છે 2-4 મિટિંગોને બધું કરીને, પણ દાદા જેટલી એ પટ્ટીઓ ઉપરથી આપણા સાધકો આવે છે, તાપી હોય, સુરત હોય, ડાંગ હોય, આહવા હોય, કોઈનું પણ તાલુકા પંચાયતનું કામ, જિલ્લા પંચાયતનું કામ, નવનાથ આશ્રમના કોઈ પણ સાધકનું કોઈ બી ઓફિસનું કામ હોય, તમે અડધી રાતના મને ફોન કરજો। એ લોકોથી નહીં પહોંચી શકાતું હોય તો હું જાતે પહોંચીને એ લોકોનું કામ કરાવવા, એ તમારા આશીષ થકી। ને જ્યાં જ્યાં નવનાથ આશ્રમને આમ તો દાદાએ તો કોઈની જોડે જવું પડતું નથી સામેથી, પણ ક્યારેક ને ક્યારેક જ્યારે જરૂર પડે આશ્રમની પડખે જ છીએ। આપણે બધા સર્વ એક થઈને રહીએ અને ગામનું એક નેતૃત્વ કરીએ એવા મારા દાદા આશીષ છે। ને આવા ને આવા તમે આશીર્વાદ રાખજો। કંઈ યથાશક્તિ કે ભૂલચૂક થઈ હોય તો એ બદલ માફી આપું છું, હું માગું છું પોતે। ગામ થકીએ કંઈ ભૂલ થઈ હોય
તો હું એક ગામના પ્રતિનિધિ તરીકે બી હું તમારી પાસે માફી માંગુ છું. કંઈ પણ હોય, કોઈ પણ વિષય તો તમે કહેજો. બીજું વિશેષ કંઈ કહેતો નથી. સર્વેને જય અવધૂત. જય અવધૂત. આ છોકરો જ્યારથી નાનો હતો ત્યારથી આશ્રમમાં આવે. એમના પરિવાર જોડે વર્ષો જૂના આશ્રમના સંબંધ છે કે એમના જે દાદા હતા ધીરુભાઈ, એમની દાદી મધુબેન, એમના પિતાશ્રી જયેશભાઈ, આ બધા જ જ્યારથી આપણો આશ્રમ સ્થપાયો ત્યારથી જ કોઈને કોઈ રીતે સંકલનમાં અવારનવાર આશ્રમમાં પણ આવતા. એમના મધર મોટેભાગે ગુરુવારે આવે આશ્રમમાં, ભોજન પ્રસાદ લે અને મોટેભાગના ઉત્સવોની અંદર પણ પ્રસાદ લેવામાં, દર્શન કરવામાં હાજર હોય. એ જ્યારે ભણતો હતો ત્યારથી આશ્રમમાં ક્રિકેટ રમવા માટે પણ આવે. એટલે એક રીતે જોવા જાય તો અમારા માટે એ હર્ષિલ છે અને જે પ્રમાણે નિખિલની ઉંમરનો છે એટલે મારા કરતાં 10-12 વર્ષે નાનો પણ છે. પણ આ પરિવારની આત્મીયતા આશ્રમની શરૂઆતથી જ જોડાયેલી અને આજે અમને બહુ આનંદ થાય છે કે દેવસર ગામની તાલુકા પંચાયતની સીટ પરથી એને ઘણું સારું બહુમત મળ્યું અને એમ કહેવાય કે આખા તાલુકાની અંદર બીજા નંબરના સૌથી વધારે વોટ લઈને એને જીત મળી છે. ઘણા વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં સક્રિય, પણ જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ધાર્મિક કામોની અંદર દાન ધર્મ કરવાની એની એક આદત અને ગણપતિનો બહુ પાકો ભક્ત છે. અને એ પ્રમાણે ભગવાનની કૃપા થઈ અને જ્યારે ટિકિટ મળી ત્યારે એણે આશીર્વાદ લીધા કે મને આમાં જીત મળે. અને હંમેશા એવું જ હોવું જોઈએ કે મા બાપના આશીર્વાદ, સંતોના આશીર્વાદ, ભગવાનના આશીર્વાદ લઈને કાર્યની શરૂઆત કરવી. પણ હવે એણે 5 વર્ષ કાઢવાના છે એટલે આશીર્વાદથી ટિકિટ મળે, યશ મળે, પણ 5 વર્ષ સારામાં સારું કામ કરી શકે એના માટે ભગવાનની કૃપાની જરૂર પડે. આશીર્વાદથી બધું મળે પણ ટકી રહેવા માટે ભગવાનની કૃપા જોઈએ. અને એટલા માટે એને મનની ભાવના કે મારે એક ભંડારો આપવો છે અને આપણા જેટલા પણ ભક્તો આવે તેના દાદા ભરપેટ જમાડો, તમને જે ભાવે તે બનાવો. પણ હું કીધું ના, તને જે ભાવે તે ખવડાવવાનું. પણ એને 10 વખત એકની એક મમત પકડી રાખી, તમને ભાવે તે જ ખવડાવવાનું. એટલે એની અંદરની જે દિલદારી છે, એક સેવાભાવ, અને આ જ સેવાભાવ બતાવી આપે કે એણે જે ટિકિટ લીધી છે એ ટિકિટ લઈને સેવા કરવા માટે નથી આવ્યું. સેવા એ પહેલેથી જ કરતો હતો. ગણપતિના મંડળોમાં જુઓ, કોઈ બીજા કામમાં જુઓ, એની સેવા ચાલુ જ હતી. ઘણા માણસો સેવા કરવા માટે ટિકિટ લે અને મારું હંમેશા એક જ કહેવું કે સેવા કરવા માટે જ કેમ ટિકિટ લેવાની? પહેલાં બી તમે કરી જ શકો ને. તો એ પહેલેથી જ સેવા કરે છે. સેવા કરવા માટે લીધી એવું નથી, એ પહેલેથી જ કરે છે. એનો મૂળભૂત સ્વભાવ છે, એના ફેમિલીનો સ્વભાવ છે. અને હું જ્યારે નાનો હતો ત્યારે એ લોકોના જ કમ્પાઉન્ડની અંદર હું ટ્યુશને જતો હતો. 6-7 વર્ષ તો હું ત્યાં ટ્યુશન આવ્યું. એમના પપ્પા મળતા હતા, બધા મળતા હતા, એ લોકોના કમ્પાઉન્ડની અંદર અમે જતા હતા. એટલે નલ્લેથી અમે ઓળખીએ છીએ. પહેલેથી સેવા કરે, ટિકિટ લીધી, હવે હજુ સેવા કરશે. અને પરમાત્માને પણ એના માટે પ્રાર્થના કરું કે એની આ નિખાલસતા, એનો આ સેવાભાવ એને અહીંયાથી નહીં, આના કરતાં પણ આગળ પહોંચાડે. અને એટલું જ હું ખાસ કહેવા માગું છું તારા માટે કે સીढ़ियाँ उन्हें मुबारक, सीढ़ियाँ दादर, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है. सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है. तुम्हारी मंजिल तो आसमान है, तुम्हारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता तुम्हें खुद बनाना है. માટે એણે પોતાના બાહુબલ ઉપર મેન્ડેટ મેળવ્યો, પોતાના બાહુબલ ઉપર ગામમાં જીત મેળવી અને આજે પોતાના બાહુબલ ઉપર જ એ બધું કરે છે. માટે આપણે સૌ એને યશ મળે, એને કીર્તિ મળે. અને અહીંયાથી એ નહીં અટકે, તાલુકા પંચાયતની સીટથી નહીં અટકે. મંજિલ આસમાન હે, એણે હજુ પણ આગળ જવાનું છે. અને અમે હંમેશા એવી હું પોતે પણ ઈચ્છા રાખીશ કે આશ્રમની તપોભૂમિના આશીર્વાદ, એની છત્રછાયા, દાદાની કૃપા અને મારી શુભેચ્છાઓ સદા એની સાથે રહે અને આગળ ને આગળ ઉત્તર પ્રગતિ કરે અને ઘણા બધા લોકો સુધી એની સેવા પહોંચે એવી પ્રાર્થના હું ભગવાનના ચરણોમાં કરું છું. આપણે બધા જ એના માટે પ્રાર્થના કરીએ
કે એની સૌથી વધારે એની પ્રગતિ થાય, એના થકી આ ગામને લાભ થાય. એકવાર વિમલા માતા જય, શેરા દાદા જય, નાથ પર ભારત માતા જય, અલાર ધીરજ. આદેશ આદેશ